Question number 1, miscellaneous exercise of chapter number 7. First question, how many words with or without meaning, each of two vowel and three consonants can be formed from the letters of the word daughter? Here, word daughter is given and we have to use the letter of the word daughter. So these are the letters of the word daughter. Total how many letters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8 letters are there. So by using these letters, we have to form one word consist of two vowel and three consonants. So total how many vowels are there? Number of vowels and number of consonants. So here in this given word daughter, vowels are number of vowels A E I O U. Three vowels are there and consonants remaining are consonant 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 consonants are there. Then what you have to do by using this letter of the word, we have to form a word with or without meaning. Each consists of two vowel. है ना? The required word consists of two vowels. That means total three vowels are there. Out of three vowels, we have to use two vowels and consist of three consonants. So out of five consonants, we have to use three consonants. Done? And we have to form two vowel and three consonant. So five letter word will be generated. So what is the total number of word? So here you can write number of words. किसी को लॉजिक समझ में आया क्या करेंगे? Number of वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे? देखो पहले तो हमें ना सिलेक्शन करेंगे. क्या सिलेक्ट करेंगे? हमें जो वर्ड बनाना है उसके अंदर दो वोवेल चाहिए, थ्री कॉन्सोनेंट चाहिए. तो थ्री में से दो वोवेल सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्शन मतलब 3C2. उसके बाद कॉन्सोनेंट 3 चाहिए तो हमारे पास टोटल 5 अवेलेबल है तो 5C3. डन. ये सिलेक्शन हो गया. टोटल हमारे 5 लेटर का सिलेक्शन हो गया. डन. अभी 5 लेटर को हम टोटल कितनी तरीके से अरेंज कर पाएंगे? तो वो जो 5 लेटर है वो आपस में 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे. तो दिस आर द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स that can be generated with or without meaning from the two vowels and 5 consonants. Done. इसका सिंप्लीफिकेशन करो, वो मिलेगा हमारा आंसर. So 3C2 is 3 factorial upon 1 factorial into 2 factorial. 5C3 5 factorial 2 factorial 3 factorial और ये 5 factorial. कितना होगा? 3C ये 3 इंटू 2 2 2 कट तो ये मिलेगा 3. ये 5 इंटू 4 इंटू 3 एंड 2 2 सा 4 तो ये मिलेगा 10 और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें याद रह गई है, दैट इज 120. डन. तो और आंसर इज 12 3 3600. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी जनरेटेड from this letter of the word daughter which consists of two vowel and three consonant is 3600 is the answer. Done. Clear students? बोलो. 5 फैक्टोरियल. देखो ये हमने टू वोवेल सिलेक्ट कर लिए यहाँ पर, है ना? तो ये टू वोवेल आ गए कोई भी तो, है ना? उसके बाद हमने 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट किए तो ये हमने यहाँ पर 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट किए. डन. तो 2 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो वर्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? 5 लेटर वर्ड बनेगा. 5 लेटर वर्ड. और ये 5 लेटर वर्ड में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि आप वोवेल्स कहाँ पर यूज कर पाएंगे, कॉन्सोनेंट कहाँ पर यूज कर पाएंगे. तो ये 2 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट को आप अरेंज करो, रीअरेंज. तो यहाँ पर 5 वेस, यहाँ पर 4 वेस, यहाँ पर 3 वेस, यहाँ पर 2 वेस, यहाँ पर 1 वेस होगा. आया समझ में? ये टोटल 5 ऑब्जेक्ट आपके पास है, उसको रीअरेंज करना है. तो ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन. ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजमेंट मिलेंगे. डन. सो दिस इज सिलेक्शन
and this is our arrangement. So this is combination, this is permutation. So permutation is 5 factorial. तो आंसर मिलेगा. Done. Now next question. यहाँ पर देखो हमें है ना सम ऑफ द ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने थे, है ना. टोटल टोटल जितने भी ये 8 लेटर्स थे उसमें से हमने 5 सिलेक्ट करने थे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. How many words with or without meaning can be formed using the letters of the word equation? Letters of the word equation. How many words with or without meaning can be formed using all letters? Using all letters, है ना. All letters. That means जितने भी letters है ना वो हमें use करने हैं. Using all letters of the word equation at a time. At a time means repetition not allowed. At a time, so that vowels and consonants occur together. Condition क्या है? Vowels और consonant एक साथ में आने चाहिए. Done. और हमें सिलेक्ट करने हैं टोटल all the जितने भी लेटर थे ना वो सारे. Done. So here पहले तो बात करें vowels की. Vowels and consonants साथ में होने चाहिए. So how many vowels are there? A, E, I, O, U. 1, 2 and 3 vowels are there. बाकी सब बचे वो हमारे कॉन्सोनेंट. कितने? 1, 2, 3, 4. और ये काउंट नहीं किया ना, ये भी होगा तो ये 4. 1, 2, 3, 4. डन. वोवेल्स कितने हैं फिर से काउंट करो. 1, 2, 3, 4, 5. 5 वोवेल्स. कॉन्सोनेंट कितने? 4. डन. 4 हुए. लेटर तो टोटल 8 है तो ये 1, 2, 3. क्या हो रहा है? टोटल नंबर ऑफ वोवेल्स आर 3 and total number of consonants are, total number of vowels are 5 and total number of consonants are 3. Done. इसका आपको सिलेक्ट करना है. You have to select all the letters at a time and condition is all vowels and consonants must become together. साथ में होना चाहिए. तो 5 वोवेल को पहले साथ में रख दो. 1, 2, 3, 4, 5 है ना. 5 वोवेल्स को पहले साथ में रख दिया. उसके बाद ये 3 कॉन्सोनेंट को रखा. एक अरेंजमेंट ये हो सकता है. दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है? दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि आप पहले ये 3 कॉन्सोनेंट रखो. उसके बाद ये 5 वोवेल्स रखो. 2 तरीके हो सकते हैं. यस और नो. वी कैन फॉर्म अ लेटर बाय यूजिंग ऑल वोवेल्स एंड ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर बाय 2 वेज. पहले 5 वोवेल्स रखो उसके बाद 3 कॉन्सोनेंट रखो. या फिर और या फिर पहले 3 कॉन्सोनेंट रखो उसके बाद 5 वोवेल रखो. ये 2 तरीके से हो सकते हैं. नाउ अब यहाँ पर हमें ये सपोज वोवेल्स रखने हैं तो ये वोवेल्स को यहाँ पर अरेंज करने के लिए 5 है तो 5 को आप कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे? 5, 4, 3, 2, 1 है ना. 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर पाएंगे. वोवेल्स को आप टोटल 5 नंबर ऑफ अरेंजमेंट आर देयर. 3 कॉन्सोनेंट यहाँ पर रखने हैं तो 3 कॉन्सोनेंट को यहाँ पर रखने के लिए इसको आप 3 तरीके से, यहाँ पर 2 तरीके से, यहाँ पर 1 तरीके से रख पाएंगे. So here total number of vowels and consonant can be arranged by 5 factorial into 3 factorial ways. Similarly, or this can be arranged with 3 factorial or 5 factorial ways. Is that clear? तो ये 5 तरीके से, ये 3 तरीके से और ये दोनों कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स भी आपस में 2 तरीके से अरेंज हो सकती है. या फिर इसको पहले रखो इसको बाद में रखो. तो ये भी दो पॉसिबिलिटीज है. डन. तो हमारा आंसर क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ permutations, total number of words. Done. So our answer is total number of words with or without meaning by using all the letters of this equation taking vowels and consonant together is equal to कितना होगा? 5 factorial into 3 factorial. 5 तरीके से, 3 तरीके से और ये सारा कितने तरीके से? 2 factorial 2 तरीके से. So into 2 factorial is the answer. क्या होगा इसका सिंप्लीफिकेशन? 5 फैक्टोरियल है ना. अभी तो याद रहेगा ना. 5 फैक्टोरियल 120, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2, 6 2 12, 12 12 144, 144 10. So total number of possible words can be generated by using all the letters of equation, repetition not allowed, and taking all consonants and vowels together is 1440. Understood? है ना. ये समझना था आपको कि ये 2 पॉसिबिलिटीज है आपके पास.
नाउ थर्ड क्वेश्चन, अ कमिटी, सिलेक्शन आ गया, कमिटी के लिए सिलेक्शन ही होता है। अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम द 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। देखो कमिटी फॉर्म करनी है, कमिटी के लिए हमारे पास टोटल अवेलेबल ऑब्जेक्ट कौन से, 9 बॉयज है एंड 4 गर्ल्स आर देयर। वी हैव टू मेक कमिटी ऑफ 7 मेंबर। कंडीशन, a committee of 7 has to be formed from the 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when committee consists of total 3 conditions are there? Done? We have to form committee from 9 boys and 4 girls. और यहाँ पर 3 कंडीशन दिए, तो पहली कंडीशन का यूज करके हम कमिटी फॉर्म करते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन इज, पहली कंडीशन, आपको 7 मेंबर की कंडीशन फॉर्म करनी है। आपके पास 9 बॉयज और 4 गर्ल्स अवेलेबल है, लेकिन कंडीशन ये है कि जब आप गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे तो कमिटी के अंदर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, है ना। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, वर्ड पर थोड़ा फोकस करो। एग्जैक्टली 3 मीन्स एग्जैक्टली 3 के एक ज्यादा नहीं, 3 से एक कम नहीं, 3 गर्ल्स कमिटी के अंदर होनी चाहिए। तो टोटल 7 मेंबर की हमें कमिटी बनानी है, वो 7 मेंबर की कमिटी में 3 गर्ल्स है और 3 गर्ल्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। तो अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या रहा कि 7 मेंबर को कंप्लीट करने के लिए 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो 3 गर्ल ले ली। उसके बाद हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे 4 बॉयज, यस और नो। और कमेटी की सिलेक्ट करनी है, दैट मीन्स कमेटी बनाने के लिए आपको पास सिलेक्शन करना होगा। आप पहले एक बॉय सिलेक्ट करो, उसके बाद एक गर्ल सिलेक्ट करो, आप कोई भी, है ना, कोई भी सीक्वेंस में आप ये सिलेक्शन करो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दैट मीन्स दिस इज प्योरली सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। सो हियर number of ways of selection, we can say number of ways of selection। आप कितनी तरीके से ये कमेटी सिलेक्ट कर पाएंगे, तो कि हमें पता है कि हमें 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है ना, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स फ्रॉम दी 4 गर्ल्स एंड रिमेनिंग 4 बॉयज फ्रॉम दी 9 बॉयज। तो आपका सिलेक्शन क्या हुआ, आपको 4 में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है, तो 4C3, है ना। सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सो 4 में से 3 गर्ल सिलेक्ट कर ली, और 7 मेंबर को कंप्लीट करने के लिए बाकी के 4 बॉयज आपको टोटल 9 बॉयज में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 9 बॉयज में से आपको बाकी के 4 बॉयज सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो दिस आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ कमिटी ऑफ 7 मेंबर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये वॉइस वाला कहाँ से आ गया, समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ नया आ गया है। 4C3, तो 4C3 की सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। और ये 9C4 होगा 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये सिर्फ बचेगा 4। और ये 9 फैक्टोरियल को करे रिड्यूस, तो वो रिड्यूस होके जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कट ना, ये कर ही दो, 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल और नीचे 5 फैक्टोरियल कट, 4 3 2 1 5 5 कट, ये 3 2 जा 6 कट, और ये 4 2 जा 8 कट। तो दिस इज 4 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7, 4 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 9, क्या होगा इसका, करो मल्टीप्लीकेशन, 36 72 504, done। So for the first case total number of possible selection will be 504, understood, डन। अभी सेकंड केस, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी थी। अभी देखो कंडीशन चेंज हो गई, आपको ये जो बॉयज दिए उसमें से जो सिलेक्ट करना है उसके अंदर लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। फिर से सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, टोटल 9 बॉयज आर देयर, 9 boys are there and 4 girls are there, 4 girls are there। Here we have to select 7 member। Now condition 2, here we have to select 7 member, that means we have to form the committee of 7 member। condition is at least 3 girls are there। देखो वर्ड पर फोकस करो, पहला था exactly 3 girls, now we are having at least 3 girls। so at least 3 girls का मतलब कौन समझाएगा मुझे,
एटलीस्ट 3, मिनिमम 3 गर्ल होनी चाहिए, है ना, 3 से कम नहीं, नॉट लेस देन 3। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट लेस देन 3। अभी 50% को समझ में आ गया, लेस देन 3 मतलब क्या, नॉट लेस देन 3 मतलब 3 से कम नहीं होनी चाहिए, 3 से ज्यादा आप ले सकते हो। तो 3 से ज्यादा आप कितनी ले सकते हो गर्ल्स, आपके पास सिलेक्शन के लिए टोटल है पॉसिबल 4 गर्ल्स, तो आपको एटलीस्ट 3 सिलेक्ट करनी है। दैट मीन्स आप 3 गर्ल सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कमिटी है 7 मेंबर की, उसमें आप 4 गर्ल भी सिलेक्ट कर सकते हो। डन। दैट मीन्स यू कैन सिलेक्ट 3 और 4 गर्ल्स। दो ऑप्शन हुए और आया प्लस, तो दो ऑप्शन कैसे लिखेंगे देखो। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, कोई बताएगा मुझे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, है ना। ओरियली मैंने समझा दिया कि क्या करना है, आपको 3 गर्ल या फिर 4 गर्ल सिलेक्ट करनी है। तो पहला केस है ना, सपोज हम 3 गर्ल सिलेक्ट करते हैं तो कैसे होगा, 7 मेंबर की कमेटी कैसे होगी अगर हम 3 गर्ल सिलेक्ट करते हो तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, अगर हम 3 गर्ल सिलेक्ट करते हैं तो 3 गर्ल कहाँ से सिलेक्ट करनी है, 4 गर्ल्स में से। सो 4 गर्ल्स में से हमने 3 गर्ल सिलेक्ट कर ली, हमें जो कमेटी बनानी है वो 7 मेंबर की बनानी है। तो 3 गर्ल आपने सिलेक्ट कर ली, अभी आपके कितने मेंबर्स चाहिए, 4 मेंबर। वो 4 मेंबर कहाँ से लेंगे हम, बॉयज में से। तो 4 मेंबर बॉयज में से लेने के लिए हम बॉयज में से 4 मेंबर को सिलेक्ट करेंगे। तो टोटल 9 बॉयज हमारे पास है, तो 9 में से 4 सिलेक्ट करेंगे। डन। और दूसरा ऑप्शन, तो और के लिए हमें करना पड़ेगा प्लस, प्लस, है ना। पहले हमने 3 गर्ल सिलेक्ट की, अभी हम क्या करते हैं, हमें बोला है कि एटलीस्ट 3, आप 3 भी गर्ल सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप 3 से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम 4 गर्ल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 4 गर्ल सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4 गर्ल है, 4 में से चारों 4 को सिलेक्ट कर लेंगे। 4C4, 4C4 होता है 1। डन। तो 4 गर्ल सिलेक्ट कर ली, हमें कमिटी चाहिए 7 मेंबर की, तो अभी 3 मेंबर बाकी रहे। तो 3 मेंबर को जो बाकी बचे उसको सिलेक्ट करने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, अभी बॉयज के पास। बॉयज कितने हमारे पास, अभी 9 बॉयज हैं, तो 9 बॉयज में से हम अभी अब 3 बॉयज सिलेक्ट करेंगे। तो जो हमारी कमिटी फॉर्म होगी ना, वो कमिटी के अंदर टोटल 7 मेंबर होंगे, और उसके अंदर एटलीस्ट 3 गर्ल्स तो होगी। एटलीस्ट 3 मतलब 3 गर्ल होगी या फिर 3 से ज्यादा, तो 4 गर्ल्स होगी, 5 नहीं हो सकती क्योंकि 5 गर्ल्स हमारे पास सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। इसका सिंप्लीफिकेशन, 4C3, 4 factorial, 4 minus 3 factorial, that is 1 factorial into 3 factorial, into 9C4, 9 factorial, 9 minus 4 factorial, that is 5 factorial into 4 factorial, plus 4C4, एक ही तरीके से सिलेक्शन होगा। और ये 9C3, 9 factorial, 9 minus 3 factorial, that is 6 factorial into 3 factorial, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। 4 factorial into 3 factorial, 3 factorial 3 factorial कट, 4 अपॉन 1 factorial 1, तो ये हो गया 4 इंटू 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 9 factorial, अभी इसके पहले किया था क्या, इसका आंसर आया था 9 factorial अपॉन 5 factorial इंटू 4 factorial। सो 9 8 7 6 5, ये 5 factorial कट होगा, और ये 4 3 2 1 प्लस प्लस ये 1 इंटू, तो 1 अभी नहीं लिख रहे, 9 फैक्टोरियल, सो 9 8 7 6 फैक्टोरियल पर ब्रेक, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज 3 2 इंटू 1। सिंप्लीफिकेशन करो, 5 फैक्टोरियल कट, 3 2 जा 6 कट, और ये 4 2 जा 8 कट, 6 फैक्टोरियल कट, और ये 3 3 जा 9, 2 4 जा 8। डन। क्या बचा, ये बचा 4 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7, है ना, 4 9 जा 36 करो, 36 इंटू 504 प्लस ये करो 3 4 जा 12 7 जा 84, और इसका एडिशन करो तो 588, 588। डन। सो टोटल नंबर ऑफ possible ways of selection which consist of at least 3 girl is 588। डन। ये थी थर्ड कंडीशन बेस पर सिलेक्शन। अभी फोर्थ कंडीशन के बेस पर करते हैं सिलेक्शन। तो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, थर्ड पार्ट सेज दैट
एट मोस्ट 3 गर्ल्स, देखो अभी दूसरा वर्ड आ गया, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। मीनिंग पता है किसी को? एट मोस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स मीन्स मैक्सिमम 3 गर्ल्स, है ना, मैक्सिमम 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर सकते हो, नॉट मोर देन 3। इसका मतलब हुआ मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 गर्ल्स, मैक्सिमम 3 गर्ल्स, और मैक्सिमम 3 गर्ल्स का मतलब होता है नॉट मोर देन 3, नॉट मोर देन 3। और नॉट मोर देन 3 का मतलब क्या होता है? आप 0 गर्ल सिलेक्ट कर सकते हो, 1 गर्ल सिलेक्ट कर सकते हो, 2 कर सकते हो, या फिर 3 कर सकते हो, लेकिन 3 से ज्यादा गर्ल सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। डन। तो अभी हमारे पास कितने ऑप्शन है सिलेक्शन के लिए? आप 7 मेंबर की कमेटी को सिलेक्ट करने के लिए, 7 मेंबर की कमेटी को फॉर्म करने के लिए आप कोई भी गर्ल सिलेक्ट नहीं करो, या फिर एक गर्ल सिलेक्ट करो, या फिर 2 गर्ल सिलेक्ट करो, या फिर आप 3 गर्ल सिलेक्ट करो, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? आपको 7 मेंबर की कमेटी फॉर्म करनी है, आपके पास सिलेक्शन के लिए 4 गर्ल्स अवेलेबल है, कंडीशन है आप एट मोस्ट 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर सकते हो 4 में से। तो मैक्सिमम 3 गर्ल्स सिलेक्ट करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? आप मैक्सिमम 3 से ज्यादा नहीं, दैट मीन्स 3 से कम हो सकती है, तो आप 4 में से कोई भी गर्ल को सिलेक्ट ना करो, या फिर 4 में से एक गर्ल सिलेक्ट करो, या फिर 4 में से 2 गर्ल सिलेक्ट करो, या फिर 4 में से 3 गर्ल सिलेक्ट करो, सारी केस के लिए कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। डन। तो 4 टोटल केस होंगे, यहाँ पर देखो 2 ही केस हुए थे, अभी यहाँ पर 4 होंगे, चारों केस को मैं साथ में लिख रहा हूँ। इट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। ध्यान से देखो, नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन दैट इज इक्वल टू फर्स्ट केस, है ना, टोटल हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन कि मैक्सिमम 3 गर्ल्स के लिए हम कोई भी गर्ल्स को सिलेक्ट नहीं कर रहे, कोई भी गर्ल्स को नहीं, है ना, सारी गर्ल्स रिजेक्टेड, तो 4 में से सारी रिजेक्टेड, चलो तो सारी रिजेक्ट कर दी, लेकिन कमेटी को हमको 7 मेंबर चाहिए, तो ये 7 मेंबर सारे कहाँ से आएंगे? सारे के सारे बॉयज होंगे। यस। तो बॉयज के लिए क्या करना होगा? टोटल 9 बॉयज में से हमें 7 बॉयज को उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आएगा 9C7। ये फर्स्ट केस हो गया। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? प्लस प्लस अभी हम क्या कर रहे हैं? 0 की जगह पर, है ना, थोड़ा दया भाव खा के हम गर्ल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना, उनको ऐसे कुछ बेइज्जती नहीं करनी है, तो चलो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एक को सिलेक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं अभी? 4 में से किसी एक को सिलेक्ट कर दे, 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, तो 4C1, तो कमेटी के अंदर सिर्फ एक ही गर्ल आई, टोटल 7 कंप्लीट करने हैं, तो अभी कंप्लीट करने के लिए अभी और हमें 6 बॉयज चाहिए, तो वो 6 बॉयज कहाँ से लेंगे हम? ये टोटल 9 बॉयज में से, तो अभी 9 में से अभी हम 6 बॉय को सिलेक्ट करेंगे। जब हम कोई भी गर्ल्स को सिलेक्ट नहीं कर रहे थे ना, तो हमें सातों सात बॉयज को सिलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि कमेटी के अंदर टोटल चाहिए 7 मेंबर। अभी यहाँ पर हम एक गर्ल को सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना, एक गर्ल, तो अभी हम 6 बॉयज हो गए, है ना, क्योंकि गर्ल आ गई तो एक बॉयज घटेगा। अभी हम कुछ और थोड़ा सिलेक्शन में आगे बढ़ते हैं, और एक गर्ल की जगह पर 2 गर्ल को सिलेक्ट करते हैं अभी, तो ये हो गया 4C2, 4 में से 2 गर्ल को सिलेक्ट किया, तो कमेटी के अंदर 7 में से 2 गर्ल आ गई, तो अभी बाकी बचे 5, जो 5 बॉयज है उसके लिए हम जाएंगे 9 बॉयज के पास, तो 9C5। डन। तो ये तरीके से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन हमारे पास है कि हम मैक्सिमम 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैक्सिमम 3 गर्ल्स के लिए 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो अभी हम 3 गर्ल को सिलेक्ट करेंगे 4C3, तो बाकी बचे 4 बॉयज के लिए जाएंगे ये 9 बॉयज के पास, तो उसमें से 4 बॉयज को सिलेक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? पक्का? इसका सिंप्लीफिकेशन क्या करें इसका, चलो कर रहे हैं। 4C0 कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, तो ये 1 हो गया, और 9C7, so 9C7 is 9 factorial, 9 minus 7 2 factorial into 7 factorial, ये प्लस इसका 4C1, 4 में से एक 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल इंटू 9C6, 9C6 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल प्लस 4C2, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 9C5 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल प्लस 4C3 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 9C4
9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। इसका सिंप्लीफिकेशन है ना आप, चलो मैं ही कर देता हूँ क्योंकि अभी ये सारा सम नहीं होने वाला है। तो किसी ने ट्राई किया क्या होता है सिंप्लीफिकेशन? 9 फैक्टोरियल को रिड्यूस करो 7 तक, 9 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7, तो 7 7 कट, और 9 इंटू 8, 8 को 2 से कट करो, 2 4 जा 8, तो ये होगा 9 4 जा 36, 36 फर्स्ट केस 36। सेकंड केस 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये बचेगा सिर्फ 4, ये कट हो गया सब। और यहाँ पर 9 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7 ना, 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल कट, और ये 3 फैक्टोरियल होगा, 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 के लिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 8, तो इसका मल्टीप्लिकेशन अभी हमने क्या किया था, 3 3 6 प्लस यहाँ पर करो तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कट, और ये 2 फैक्टोरियल से 2 कट, तो ये 2 3 जा 6, और यहाँ पर 9 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कट, तो 9 8 7 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 3 2 जा 6 कट होगा, 4 2 जा 8 होगा, 9 7 2 जा 14, 9 जा कितना होगा, 1 2 6, करो मल्टीप्लीकेशन, 1 2 6 इंटू 6, 1 2 6 इंटू 6, 1 2 6 756 प्लस ये वाला 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये होगा 4, और ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 5 फैक्टोरियल, अगेन ये आ गया 126, तो 126 इंटू 4 504, 504, और सबका एडिशन करो, 1632, 1632 is the answer। अब वेरीफाई कर लेना, हो ना, है ना, ये आप देख लेना, मुझे तो लग रहा है ये आएगा। डन। हाँ ओके, चलो आ गया समझ में तीनों तीन केस। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स? है ना, क्योंकि आपकी एग्जाम आने वाली है, एग्जाम के लिए रेडी हो सब? परम्यूटेशन के सारे सम आएंगे एग्जाम में। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि एग्जामिनेशन है ना, इसलिए मैंने आपको एग्जाम को याद किया। इफ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, जो आपकी होने वाली है यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन, if the different permutations of all letters, है ना, all letters सारे यूज करने, all letters of the word examinations are listed as in a dictionary, आपको इसको डिक्शनरी में आपको इसके जो सारे लेटर्स हैं उसको आपको लिस्ट करना है। in how many words are there in this list before the word, before the first letter, before the first word starting with e, है ना, ये आपके जो JEE के क्वेश्चन होते हैं ना, वो टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन दिया है कि ई से स्टार्ट होने वाले जो लेटर्स होंगे ना वो कौन से नंबर पर होंगे। JEE के अंदर आपको कोई भी लेटर दे देंगे, है ना, तो इसका लॉजिक है ना वो बहुत ही डीप है, इसके बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो अभी उसको इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे, कभी टाइम मिला तो उसको हम थोड़ा देखेंगे, लेकिन ये लॉजिक को आप सिर्फ देख लो कि क्या करना है। एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल नंबर ऑफ 11 लेटर्स आर देयर। डन। तो आपको है ना इसको डिफरेंट डिफरेंट वे से अरेंजमेंट करना है। यू टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लेटर्स जनरेटेड फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगा, डिफरेंट नंबर ऑफ परम्यूटेशन, और वो जो डिफरेंट नंबर ऑफ परम्यूटेशन मिल रहा है ना आपको 11 फैक्टोरियल करके मिलेगा, और डिवाइड बाय जो रिपीट हो रहा है वो डिवाइड कर दो, तो आपको डिफरेंट नंबर ऑफ परम्यूटेशन मिलेगा। और वो जो डिफरेंट परम्यूटेशंस मिल रहे हैं उसको आपको डिक्शनरी के फॉर्म में अरेंज करना है। डिक्शनरी में कैसे होता है, ए से नंबर स्टार्ट होता है ना, जो वर्ड ए से स्टार्ट होता है, उसके बाद बी से स्टार्ट होता है,
ए के अंदर भी पहले एक, उसके बाद ए, उसके बाद दूसरा कोई लेटर आएगा। ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं सब नंबर्स, है ना। आप मोबाइल का कॉन्टेक्ट लिस्ट देखो तो उसमें भी ए से स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद बी से स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद सी से स्टार्ट होने वाला है। ऐसे नंबर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा है आपको कि आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करने हैं। उस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करने के बाद आपको देखना है कि जो ई लेटर स्टार्ट होने वाला वर्ड है ना, वो कौन से नंबर पर आएगा, है ना। So if all the words are listed as in dictionary, how many words are there in this list before the first word start with E? तो E से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है उसके पहले कितने होंगे। तो देखो इसके अंदर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करें तो ई से पहले आने वाले अल्फाबेट्स लेटर्स कौन से है, यहाँ पर सिर्फ दो ही लेटर है, कौन से, ए। तो ए से स्टार्ट होने वाले नंबर ई से आगे होंगे, उसके बाद ई आएगा। डन। तो ए से स्टार्ट होने वाले नंबर के लिए सिर्फ हम ए एक लिखें, उसके बाद सारे अरेंजमेंट चेक करें तो कितने होंगे, देखो टोटल 11 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। डन। ए से स्टार्ट होने वाले लेटर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ई की बारी आएगी। तो अभी हम यहाँ पर काउंट करेंगे कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हो सकते हैं। तो देखो ए हमने यूज कर लिया, दूसरा ए है वो यहाँ पर रिपीटेशन में आएगा। तो ए को हमने रख लिया, अभी हम ये काउंट करेंगे कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर है। तो टोटल नंबर ऑफ 11 जो लेटर्स है उसमें से 1 यूज कर लिया, अभी हमारे पास कितने बचे, 10 बचे। और जो ऑब्जेक्ट है ना वो रिपीटेड हो रहा है, सम ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड। तो इसको काउंट करने के लिए हमारे पास जो थियरम नंबर 3 था ना वो यूज करेंगे, है ना। टोटल 11 लेटर्स में से ए हमने यहाँ पर रख दिया, अभी बाकी बचे 10 लेटर। तो 10 लेटर का हमें टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करना है, तो होगा 10 फैक्टोरियल। उसके बाद हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड, तो एक ये को यूज कर लिया, तो अभी एक ए को कंसिडर नहीं करना है। तो अभी इसके बाद जो भी लेटर्स है उसमें रिपीट होने वाले कौन कौन से है, तो रिपीट होने वाले लेटर्स की बात करें तो ये कुछ दिख रहा है, ये एन, एन 2 बार रिपीट हो रहा है, और ये आई भी 2 बार रिपीट हो रहा है। डन। और इसके अलावा कुछ है नहीं है ना, नहीं है। तो ये 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं। सो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वे से आप बाकी के 10 लेटर को अरेंज करेंगे तो वो जो आपको परम्यूटेशन मिलेगा ना, वो कौन सा परम्यूटेशन मिलेगा, लेटर स्टार्ट विथ ए से स्टार्ट होने वाले लेटर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ई की बारी आएगी। आइए समझ में, ये ए से स्टार्ट होने वाले लेटर होंगे, उसके बाद ई से स्टार्ट होने वाले, उसके बाद ई के आगे वाला नंबर, ऐसे आपको परम्यूटेशन मिलेगा। डन। तो ए से स्टार्ट होने वाले लेटर आपको इतने लेटर मिलेंगे, इतने जो वर्ड्स है, इतने जो वर्ड्स, वो वर्ड्स के खत्म होने के बाद ई से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स है उसकी बारी आएगी। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कम्स बिफोर द ई दैट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये होगा, क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट, और ये 2 2 जा 4 भी कट कर दो, और इसका मल्टीप्लीकेशन करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा। करो फटाफट मल्टीप्लीकेशन, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 करो। नाइन 07200। डन। सो ये क्या नंबर मिला हमें, these are the numbers, these are the number of words that comes before this letter e, e के पहले आने वाले इतने लेटर है। इतने सारे आप वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे ना, वो सब ए से स्टार्ट होने वाले होंगे। ये सारे जो नंबर्स खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद ई से स्टार्ट होने वाले जो परम्यूटेशन होंगे ना वो सब स्टार्ट होंगे। इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। 6 डिजिट नंबर बनाना है और क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट्स आर 1 0 1 3 5 7 9 which are divisible by 10 and no digits repeated, repetition not allowed and divisible by 10 होना चाहिए। so how many 6 digit numbers can be formed, ये तो सिंपल हो गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही काम आ गया हमारा। 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर बनाना है।
है ना। इवेंट्स बोल दो, कौन सी इवेंट, इवेंट ए बी सी डी ई एफ, नंबर 10 से, है ना, 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट सबको आती होगी, शायद साइंस में आगे हो तो आती होगी। 10 से डिविजिबल नंबर कब होगा, जब उसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 होगा। ये 0 होगा मतलब आप ये जो फर्स्ट प्लेस है उसको आपको कितने तरीके से फिलअप करना है, एक 0 ही रखना है यहाँ पर। तो ये फिक्स आ गया, है ना, ये कंडीशन वाला आ गया पार्ट। कंडीशन क्या है, यहाँ पर आपको एक 0 ही रखना है। तो अब इसको सिर्फ वन तरीके से, बाय वन वे यू कैन फिल अप दिस फर्स्ट प्लेस। क्लियर, यस और नो? यस। उसके बाद रिपीटेशन अलाउ नहीं है आपके पास, ये 0 आपने यहाँ पर यूज कर लिया, है ना, डिविजिबल बाय 10 करने के लिए फर्स्ट प्लेस पर। अभी बाकी बचे जो प्लेसेस हैं, 5 प्लेसेस, उसको आपको ये 5 नंबर से फिलअप करने हैं। तो ये 5 तरीके से, ये 4 तरीके से, ये 3, ये 2 और ये 1 वे से फिलअप होगा। सो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स, ये क्या बात हुई, total number of numbers that can be formed by using these numbers which are divisible by 10 and repetition is not allowed, that is 5 factorial into 1। 5 factorial अभी हमें पक्का याद रह गया कि 5 factorial 120 होता है ना, कितनी बार यूज किया। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर कोई बोलेगा सर फॉर्मूला का यूज करके भी बताओ ना, तो देखो फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ से ही देख सकते हो। आपको सिलेक्शन करना है, क्या सिलेक्ट करना है कि ये जो था ये यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर क्या था, 1p1 एक था, एक ही सिलेक्ट करके रखना था, तो ये 1p1 1 हो गया। और यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट थे, उसको 5 तरीके से आपको रीअरेंज करने थे, तो ये 5p5 था। तो ये 1 इंटू 5p5, so 1 into 5p5 is nothing but the 1 into 5 factorial, that is also 120। दिस इज बाय यूजिंग फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला से अच्छा ये हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स?